Hello students, welcome to lecture number 17 of the chapter Final Accounts with Adjustments. And this is our last lecture of comprehensive questions exclusive of GST. Then we'll do 4 lectures, comprehensive questions inclusive of GST. Question number 28. Question number 28. From the following balances extracted from the books of Sharma, prepare the trading and P&L account for the year ended 31st March 17 and the balance sheet as at the date after taking into consideration the adjustments given below. We have a trial balance. Adjustments, we have closing stock, depreciation, outstanding rent, bad debts, provision for doubtful debts, charge 1/4 salaries and wages to trading account. 1/4 जाएगा trading में, बाकी जाएगा P&L में. A new machinery was purchased on credit and installed on 31 December 16, costing 15,000. 15,000 की एक नई मशीनरी खरीदी उधार पे. No entry for same has been passed in the books, but ये एंट्री डालना भूल गए, तो इसकी एंट्री बन जाएगी मशीनरी टू सप्लायर. मशीनरी में प्लस एंड सप्लायर में प्लस, एक एसेट एक लायबिलिटी. और जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीनरी पर वो डेट के हिसाब से लगाएंगे क्योंकि न्यू मशीनरी खरीदी है. और एडजस्टमेंट है लास्ट, ट्रांसफर 2000 टू जर्नल रिजर्व. दिस इज एन अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल लास्ट में होगा नेट प्रॉफिट के बाद. जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से 2000 जनरल रिजर्व में जाएगा, बाकी कैपिटल में जाएगा. अगर लॉस हुआ तो ये नहीं करेंगे, ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं बट उस टाइम नेट लॉस आया था. अब हम करेंगे जब नेट प्रॉफिट आएगा. क्वेश्चन नंबर 28 इन द बुक्स ऑफ शर्मा. In the books of Sharma, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 17. Particulars amount. This is our trading account. In case we need any working note, we'll make it here. After that, I am making P&L account. आपका ट्रेडिंग P&L एक पेज पे पूरा आएगा. Then we will make balance sheet. As at 31st March 17, liabilities amount, assets amount. So starting with, first we have is drawings and capital. Drawings capital से minus capital liability. Balance sheet. Capital 50,000 minus drawings 7,500. Purchases and sales, debit and credit side of trading account being expense and income. To purchases 70 to 100, by sales 95,000. Then we have returns. Purchase return 2,700 subtracted from purchases. Sales return subtracted from sales. Purchase return have credit balance and sales return have debit balance. Opening stock, debit side of trading account to opening stock
19,800. Bad debts, debit side of, no, we'll make the bad debts account and then we'll adjust it. Bills receivable, assets, no adjustment. Bills receivable 12,000. Bills payable, liability 23,000. Cash in hand, asset 300. Office expenses, indirect expense, debit side of P&L account, $6,210. सेल्स वैन एसेट, डेप्रिसिएशन है इसलिए इनर कॉलम में डालेंगे 15,000. डेप्रिसिएशन इज 20% पर एनम माइनस डेप्रिसिएशन 3,000. Being indirect expense, debit side of P&L account, depreciation on sales van 3,000. सेल्स वैन एक्सपेंसेस, अगर पुरानी सेल्स वैन खरीदते उस पर खर्चा होता तो सेल्स वैन में प्लस करते. यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो ये उसकी पेट्रोल डीजल का खर्चा है. 2 सेल्स वैन एक्सपेंसेस 1,400, डेबिट साइड ऑफ P&L. डिस्काउंट प्रोविजन, डिस्काउंट रिसीव्ड है P&L में क्रेडिट साइड. एक लाइन ऊपर स्किप कर दी है मैंने ताकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को रिकॉर्ड किया जाए. 2,910. डिस्काउंट अलाउड होता तो वो भी लिख देते क्योंकि डिस्काउंट की कोई प्रोविजन नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन है. रेंट एंड टैक्सेस, डेबिट साइड ऑफ P&L 2. रेंट एंड टैक्सेस 10,700. Outstanding rent is 900 plus outstanding 900, and outstanding rent will go on the liability side. Outstanding rent 900. Telephone charges, indirect expense, debit side of P&L to telephone charges 1050. Postage and telegram, debit side of P&L to postage and telegram 950. Furniture asset 5,000. We have the depreciation and the depreciation is 10% per annum. फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे -500, लेफ्ट विथ 45. एंड दिस डेप्रिसिएशन विल गो ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L ओनली टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होती तो एसेट से माइनस ना करते, लायबिलिटी में ही प्रोविजन में प्लस कर देते. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड ऑफ P&L 2,750. Commission to the debit side of P&L to commission 8,400. Debit side of P&L, no adjustment is there further. Carriage inward, direct expense, debit side of trading account 3,200. सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस हैं तो ट्रेडिंग, सैलरीज है तो P&L, दोनों इकट्ठे हैं. जो चीज़ पहले लिखी है वो लेंगे, बट इस क्वेश्चन में लिखे 1/4 सैलरी ट्रेडिंग में, बाकी P&L में. तो लेट इट बी एग्जाम्पल 1,
working note 1, salaries and wages 20,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस, उसके बाद एडजस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है बट मैं मेंशन करवा देता हूँ। 9th एडजस्टमेंट लिखिए। आई नो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट मैं स्पेसिफिकली मेंशन करवा रहा हूँ ताकि आपको एक नया पॉइंट पता लगे। लिखिए 9th एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में नहीं है, आप लिखेंगे 9th। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000 एंड प्रीपेड वेजेस 500। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000 एंड प्रीपेड वेजेस 500। गॉट इट? अब आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 और प्रीपेड वेजेस माइनस हो जाएंगे 500, दोनों इकट्ठे हैं क्योंकि ये बन गया 21,000। अब 1/4 जाएगा ट्रेडिंग में और बैलेंस जाएगा P&L में। एडजस्टमेंट करने के बाद 1/4 और 3/4 करेंगे। सो 20,500 प्लस 1,000 माइनस 500 का 1/4 5250 ट्रेडिंग में जाएगा और 15,750 P&L में जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सैलरीज एंड वेजेस, वर्किंग नोट 1 5250 टू सैलरीज एंड वेजेस, वर्किंग नोट 1 15,750 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं हमारी 1000 एंड प्रीपेड वेजेस हैं हमारे 500। आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, प्रीपेड माइनस करेंगे। सैलरी पहले है तो P&L, वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग, दोनों इकट्ठे हैं तो सिर्फ वेजेस है तो ट्रेडिंग, सिर्फ सैलरी है तो P&L, दोनों इकट्ठे हैं। जो चीज़ पहले लिखी है बट इस क्वेश्चन में लिखा है 25%, 1/4 ट्रेडिंग में, बाकी P&L में। कूल, मूविंग ऑन। कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस में कुछ भी मेंशन नहीं है एज इन हिडन। नाउ मूविंग टू एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक 61,700, credit side of trading account by closing stock 61,700 and it will go on the asset side while making the balance sheet. Closing stock or you can write only stock क्योंकि पता लग ही जाएगा वो 31 मार्च का स्टॉक है। 61,700। डेप्रिशिएट फर्नीचर डन, मशीनरी डन, सेल्समैन डन। नो, मशीनरी डेप्रिशिएट नहीं हुई है। कितनी मशीनरी यही नहीं पता अभी तो, देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट 900, लाइबिलिटी एंड रेंट में प्लस, डन। बैड डेट्स 200, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो डेटर्स में से एडजस्ट करेंगे। हाउ मच आर द डेटर्स? आई थिंक वी हैव स्किप्ड दैट। Yes, I have skipped after returns. We have recorded stock. Debtors. Debtors we have is 18,200 and creditors we have is 35,750. Debtors में से माइनस करेंगे further bad debts. नीचे गिवन है further bad debts 200, बच गए 18,000। अब इसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन में बोला है 5%, 5% ऑफ 18,900। अगर फर्दर डिस्काउंट होता तो इसमें से माइनस करते, फर्दर बैड डेट्स के बाद। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता तो इसके बाद माइनस करते। आई होप यू गॉट इट। फर्दर डिस्काउंट, फर्दर बैड डेट्स के बाद, फर्दर डिस्काउंट की प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बाद। और ये कहाँ पे जाएगा? P&L में डेबिट साइड। बट P&L में डेबिट साइड से पहले हम उसके एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं ताकि वर्किंग नोट से ही वैल्यू पुट कर दी जाए। मैंने कैश इन एंड ड्रॉप किया था इसलिए राइटिंग अगेन। नाउ लेट्स मेक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2 आई गेस। यस, वर्किंग नोट नंबर 2, बैड डेट्स।
ट्रायल बैलेंस में हमारे पास बैड डेट्स हैं 3000 प्लस फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में है 200 प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 900 माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपको गिवन होगी एडजस्टमेंट में ही, नहीं गिवन है तो 0, सो दैट इज 4100। P&L में डेबिट साइड नेगेटिव हो जाता तो क्रेडिट साइड डालते, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्किंग नोट नंबर 2। ऑल डन। 8th एडजस्टमेंट पेंडिंग है अप्रोप्रिएशन। 9th एडजस्टमेंट जो मैंने लिखवाई थी वो हम कर चुके हैं, जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 7 स्टार मार्क कर लीजिए, एडजस्टमेंट 7 और 8 पे स्टार मार्क कीजिए। अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर कॉस्टिंग 15,000। नो एंट्री ऑफ सेम हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। वर्किंग नोट नंबर 3, when machinery is purchased on credit, then the entry will be machinery account debit to supplier या creditor for machinery। तो मशीनरी जाएगी, ये जाएगा एसेट में और ये जाएगा लाइबिलिटी में। तो मशीनरी में प्लस कर देंगे, पुरानी मशीनरी तो कोई है ही नहीं, मशीनरी में प्लस करेंगे, बट पुरानी कोई मशीनरी है ही नहीं, तो सिंपल मशीनरी, और यहाँ पे आ जाएगा सप्लायर या क्रेडिटर ऑफ मशीनरी। आप देख सकते हैं एसेट में भी चला गया, लाइबिलिटी में भी चला गया। एसेट में 15,000 की मशीनरी और लाइबिलिटी में 15,000 उधार पे खरीदे थे, इसलिए क्रेडिटर्स में प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं। ये मशीनरी खरीदी है तो ये क्रेडिटर्स नहीं है। मशीनरी पे 10% की डेप्रिसिएशन लगेगी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी विल बी 15,000 का 10% पर एनम है। 15,000 का 10% पर एनम है। कितने मंथ्स के लिए? हमने खरीदी है 31 दिसंबर को, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं थी? क्योंकि इसी साल अभी खरीदी और एंट्री डालना भूल गए। ये हमने रेक्टिफिकेशन की एंट्री डाल दी। 15,000 का 10%, 3 महीने के लिए 375। 15,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स 375 माइनस डेप्रिसिएशन 375 और यहाँ पे आ जाएगा P&L में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। वर्किंग नोट नंबर 3, that is 375। ऑल डन। ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, एप्रोप्रिएशन, बट वो तो तब आएगी जब प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट है कितना पता नहीं, तो लेट्स क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस the total of credit side is 155,400 और अगर हम डेबिट का माइनस कर दें टोटल, it's 69,400 is net purchases. So 155,400 minus 5250 minus 3200 minus 69,400 minus 19,800 is 57750. This is gross profit. We will transfer to P&L account by gross profit 57750. Let's close it. It's 60,660.
660 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है नेट प्रॉफिट बैलेंस 4575। आई नो मैंने अभी एक एडजस्टमेंट नहीं की है, आई नो दैट। प्रॉफिट आएगा तो एप्रोप्रिएशन करेंगे और अब प्रॉफिट यस आ चुका है। इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, यस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने एप्रोप्रिएशन करनी है। कैसे करेंगे सभी ध्यान दीजिएगा। ये नेट प्रॉफिट अब इसके नीचे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 4575। 4575 में से कुछ पैसे जनरल रिजर्व में जाएंगे या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जाएंगे या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जाएंगे। दिस इज एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो डालेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2000 जनरल रिजर्व में डाल दो। 4575 में से 2000 जनरल रिजर्व में चले गए और बाकी कैपिटल में चले गए। 2575। दिस इज हाउ विल डू द एप्रोप्रिएशंस। आपको याद होगा मैंने बताया था प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, क्योंकि अगर लॉस होगा तो जनरल रिजर्व में कैसे डालेंगे। और इसके नीचे ही छोटू सा अकाउंट बन जाता है जिसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं होता बनाना। आप जनरल रिजर्व ऊपर भी डाल सकते हैं, ये समझाना इजी है इसलिए हम ऐसे करते हैं। अब इसको दोनों को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे कुछ ऐसे। देखिए नेट प्रॉफिट क्या था? 4575। देखिए कैपिटल में प्लस होना चाहिए था 4575 4575, बट हम प्लस करेंगे प्लस नेट प्रॉफिट कितना 2575, क्योंकि बाकी जनरल रिजर्व में चला गया 2000। और मैंने ये लाइन भी बताई थी, जनरल रिजर्व को कैपिटल के जस्ट नीचे लिखते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में कैपिटल होती है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से हम कैपिटल में डाल नहीं सकते, इसलिए जस्ट जनरल रिजर्व कैपिटल के साथ ही लिखेंगे। सो देखिए 4575 लायबिलिटी है, एक कैपिटल प्रोप्राइटर को मिल गई और एक बिजनेस में रिजर्व के नाम से रख लिया। 45075। The total of liability side is 112725. The total should be same. Let's verify that. Perfect. 122. Have a look on trading account and P&L account for 1 minute. Speed up. 1 minute for trading and P&L account. इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं 7th, 8th एंड 9th। 7th, 8th एंड 9th जो मैंने अपने आप अभी आपको लिखवाई है। नाउ हैव अ लुक फॉर 1 मिनट ऑन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का टोटल है 122,725। 122,725।
Okay, now moving to question number 32. क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूँ. दिस क्वेश्चन विल बी डन बाय योरसेल्फ. और विक्रम की ट्रायल बैलेंस गिवन है, दिल्ली का पर्सन है, लिखा मेंशन किया हुआ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. डेबिट साइड पे अगर हम ध्यान दें तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं जो P&L में जाएंगे. कैरेज ऑन सेल नज़र आ रहा है, दिस इज सेल्स कैरेज आउटवर्ड, P&L में जाएगा. क्रेडिट साइड पे मुझे इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ये है इंटरेस्ट अर्नड, ये P&L में क्रेडिट साइड पे जाएगा. एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, प्रोविजन फॉर 5% इज मेड, डेटर्स में से माइनस, P&L में डेबिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक इज दिस, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज दिस, बिल्डिंग से माइनस एंड P&L में डेबिट साइड. सैलरी फॉर द मार्च इज स्टिल टू बी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड. मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम 120, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 120 है जो 30 जून को पे हुआ है. पूरे साल का हमने पे किया तो एक महीने का हो गया 10 रुपीज़ ओनली, 120 रुपीज़ हैं पूरे साल के. देखिए 500 रुपये मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, नज़र आ रहे हैं आपको ट्रायल बैलेंस में 500. उस 500 में कुछ वाटर एक्सपेंसेस हैं, कुछ सीवरेज बिल है, कुछ वाटर बिल है. उसमें 500 में 120 एक ऐसा खर्चा है जो साल में 30 साल के लिए मैंने 30 जून को पे किया. 30 जून को पे किया, अगली 30 जून तक, राइट. 30 जून को पे किया, अगली 30 जून तक, तो 3 महीने का हो गया एडवांस. हमने पे किया 30 जून को, पे किया 30 जून को 17, 30 जून 18 तक. बुक्स क्लोज हो रही है मार्च में, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का हो गया प्रीपेड. प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने, 120 का 3/12, 30 रुपीज मिसलेनियस एक्सपेंसेस से माइनस एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग, P&L एंड द बैलेंस शीट ऑफ द विक्रम. Cool, clear? Self question. So here we complete lecture 17, but आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके 10 मिनट चाहिए स्टे, 5 से 7 मिनट चाहिए. मैं आपको GST की ट्रीटमेंट को रिवाइव करवा रहा हूँ. आपके माइंड में GST की चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन की जा रही हैं ताकि लेक्चर 18, 19, 20 एंड 21 में आपको कोई दिक्कत ना आए. पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जैसे बनता है, फिर P&L अकाउंट बनाएंगे जैसे बनता है, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे जैसे बनती है. ऑल गुड. बात आएगी GST की. देखिए सिर्फ समझिए, जब सम करेंगे पता लग जाएगा. जस्ट लिसन केयरफुली. इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है. तो अगर एडजस्टमेंट में CGST, SGST या IGST डेबिट में हो तो डेबिट वाली अमाउंट प्लस करेंगे, क्रेडिट वाली अमाउंट माइनस करेंगे और नेट अमाउंट निकालेंगे. तो हम ट्रायल बैलेंस से वैल्यू उठाएंगे. यू नीड नॉट राइट. अभी 6 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, जब करेंगे पता लगेगा. 6 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ. ट्रायल बैलेंस से इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST उठाएंगे और एडजस्टमेंट्स में जो डेबिट है वो प्लस करेंगे, क्रेडिट है वो माइनस करेंगे और एक अमाउंट आ जाएगी. फिर हम मूव करेंगे आउटपुट पर. आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है. क्रेडिट हम ट्रायल बैलेंस से वैल्यू उठाएंगे,
आई रिपीट, हम ट्रायल बैलेंस से वैल्यू उठाएंगे, डेबिट है तो माइनस करेंगे, क्रेडिट है तो प्लस करेंगे, डेबिट करेंगे माइनस, क्रेडिट करेंगे प्लस, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, और एक नेट अमाउंट निकालेंगे। ये प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास 6 अकाउंट आएंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, प्लस माइनस एडजस्टमेंट के बाद लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी, विल जस्ट प्लस माइनस करके चेक कर लेंगे। फिर हम करेंगे राइट ऑफ थर्ड कॉलम में, C और S I से राइट ऑफ होगा, I से राइट ऑफ होगा। मींस पहले I को I से राइट ऑफ करेंगे, फिर I को C और S से राइट ऑफ करेंगे। C S से राइट ऑफ नहीं हो सकता, ना ही S C से राइट ऑफ हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ राइट ऑफ होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ राइट ऑफ होगी, बट सेंट्रल और स्टेट इंडिपेंडेंटली राइट ऑफ नहीं हो सकते। और जो नेट अमाउंट बचेगी वो अगर डेबिट में है तो एसेट में शो करेंगे, क्रेडिट में है तो लायबिलिटी में शो करेंगे। मींस गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। सो विल मेक 3 वर्किंग नोट्स। द फर्स्ट वुड बी फॉर इनपुट्स debit, the second would be for the outputs credit, and third would be for writing of input with output, and the remaining balance will go in the asset or liability side of the balance sheet. Cool? अब इसकी प्रैक्टिस आगे के लेक्चर्स में हम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।